Very good morning, all of you. I hope you all are well. So your summer has been passed now, and I hope that you have studied well during these holidays. And I want that you have to give your MMS as well, because I have already given you to record your MMS and send it to me. Okay. If you have done this, then you have to send on my personal WhatsApp number. Okay. Today evening only, because I will add marks on your activities as well. And those students who will not send their work yet, please inform them. If they will not give any work, then they will get simply 0. Okay, not more than that. So be prepared, be very precise on your work. Okay, got it or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, we have done chapter number 2 in computers, right? We have done chapter number 1 and Yes, chapter sir. number 2. Okay. Now in Yes, sir. computer, the chapter number 3 is advanced topics in MS Access. Advanced topics Yes, in MS Access. Chapter number 3 is Yes, sir. advanced topic in MS Access. topic in MS MS Access. रीजनिंग नहीं आएगी? रीजनिंग भी आएगी. सिलेबस देखा था आपने जो मैंने भेजा था? Yes, sir. Now the second thing is that chapter number 4 is more on basic. So you know that this chapter number 3 is entirely new topic. Okay, and this chapter number 4 is more on Q basic. This is relatively familiar chapter. Okay, so now first of all we will complete chapter number 4, then we will do chapter number 3. Okay, so I will do this chapter number, this one I will do first. Okay, I will do this first. Okay, and after that I will do this at second position. Okay, got it or not? Got it or not? समझ में आई नहीं समझ में ये बात? Yes. पहले आपको चैप्टर नंबर 4 करना है, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 करना. ओके, तो चलिए आपको मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी. नाउ मूविंग ऑन. Just wait for a moment. Okay. Now start chapter number 4, more on Q basic. Chapter number 4 is more on Q basic. I will do chapter number 3 after I will do chapter number 3 once the chapter number 4 is finished. Okay, so chapter number 4 is more on. Okay, sir. More on Q basic. Okay, more on Q basic. So first of all, I just want to tell you that how many of you don't know the full form of Q basic? Shivan and Mishra, do you know the full form of Q basic? What is the full form of Q basic? Sir, beginners all proposal symbolic instruction code. Quick beginners all purpose symbolic instruction code. Symbolic instruction code. Okay, students, actually we have we will learn this chapter Q basic with our ID. Actually we do practice ना, we will do practicals also. हम practicals भी करते हैं ना बच्चों? हम लोग करते नहीं करते practicals? ये बताइए. हाँ, Yes, sir. करते याद है? तो एक हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, एक IDE का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? IDE का. ठीक है, वो IDE क्या होती है, उसी पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं. मैं आपको एक ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाता हूँ हमेशा, जिसमें मैं कोडिंग करता हूँ नहीं करता हूँ? याद आया? Yes, sir. ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको शायद याद आ जाएगा अगर भूल गए हो आप छुट्टियों में.
ये देखिए ये नो सर याद है। ओके। तो ये जो स्क्रीन होती है सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? QB64। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? QB64। क्या है? QB64। सो अगर मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं, द सॉफ्टवेयर वी यूज, द सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर we use to do QBasic is QB64। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है बच्चों? QB64। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? Yes. गॉट इट? ओके। तो दिस इज अ Yes, सॉफ्टवेयर sir. वी यूज। ओके। और बच्चों इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? अगर आपसे पूछे विच सॉफ्टवेयर यू आर रेफरिंग टू कोड QBasic, so you have to say QB64. QBasic, QB64 या QBasic 64। Basically, this software is called IDE. This is an IDE. This is QB64 is an IDE. QB64 is an IDE. What? IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. Got it? It stands for Integrated Development Environment. Got it or not? Got it? Yes. Got it? Tell me. So this is Yes, sir. Yes, sir. QB64. Okay. It is an integrated development environment. So first of all, the question comes is that, sir, what is integrated development environment or what is IDE? Question दिमाग में आया ना कि सर IDE क्या है? आया नहीं आया बताइए? Yes, ma'am. एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंट बना दिया गया। जैसे अगर आप लोग गेम खेलते हैं, जैसे PUBG खेलते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐप दे दी गई है। ऐप दे दी गई ना, एक PUBG की ऐप है जिसको आप खोलते ही आप वो गेम स्टार्ट हो जाता है आपका। उसी तरीके से जब आपको फ्री फायर खेलना हो तो ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब खोला आपने, एक ऐप है, आपने चालू किया, यूट्यूब स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग को इजी कर दिया जाए, आपको इजीली प्रोग्रामिंग समझाई जा सके, इसलिए क्या बनाई गई है? IDE। क्या बनाई गई है? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें वो सारे के सारे टूल्स, वो सारे के सारे फीचर्स होते हैं जो आपको प्रोग्रामिंग करने में रिक्वायरमेंट होती है। तो QB64 वो IDE है जिसमें आप QBasic के कोई भी कोड लिख सकते हैं। समझ में आई नहीं समझ में आई बात? ये बताइए, बताइए नहीं समझ में आई नहीं समझ में आई? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके। बेसिकली QBasic वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। QBasic को किसने डेवलप किया था बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के नाम तो कुछ याद आता है आपको? Bill Gates. बिल गेट। वेरी गुड। और क्या याद आता है? MS वर्ड, MS एक्सेल याद आता है? Yes, Yes. sir. उन्होंने ही बनाया था। QBasic वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट। Microsoft. आपको पता है इट इज अमेरिकन कंपनी which is involved Yes, in sir. most of the operating systems. Even जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ विंडोज, और आपके कंप्यूटर लैब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? विंडोज के ही हैं। और विंडोज को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। उसी कंपनी ने ये QBasic लैंग्वेज डेवलप की थी, उसी कंपनी ये लैंग्वेज बनाई थी। द पर्पस ऑफ दिस लैंग्वेज इज टू, द पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या था? एम aim of this language oh my god
aim of this language is to give is to make programming easy, is to make programming easy. इसका मोटिव क्या था, बच्चों को प्रोग्रामिंग जो है बहुत इजी बनाई जा सके. क्या बनाई जा सके? इजी बनाई जा सके. आप जैसे जो बच्चे जो अभी प्रोग्रामिंग की दुनिया में नए हैं थोड़े, उनको लिए प्रोग्रामिंग इजी बनाई जा सके, इसलिए ये लैंग्वेज डेवलप की थी किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने. इट इज बेसिकली यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज. ओके, ठीक है. Yes, sir. ओके, नाउ मैं आपके आईडीई की बात करता हूँ. किसकी बात करता हूँ? आईडीई की बात करता हूँ. ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ आईडीई की. तो ये आपको आईडीई दिख रही होगी. वेट फॉर अ सेकेंड. ये आपको आईडीई दिख रही होगी ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा, एक सेकंड होल्ड करिएगा जस्ट. मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा था. वो देखिए फीचर अगर Yes, दिख sir. जाता है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है मेरे लिए. Yes, sir. ये वेरी गुड. ये देखिए बच्चों, एक स्क्रीन आपको दिख रही है. ये मैंने Yes, आईडी sir. का Yes. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया है. ठीक है, तो इसके अलग अलग सेक्शन होते हैं. इसके अलग अलग क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं. ओके, तो इसका जो ये वाला सेक्शन होता है, ये जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन को बोलते हैं, ये सेक्शन होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं टाइटल बार. क्या बोलते हैं बच्चे? टाइटल Title. बोलते हैं इसको. Title bar. जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, फिलहाल तो मेरा कोई प्रोजेक्ट है नहीं इस वक्त, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? तो टाइटल बार. क्या बोलते हैं? Title bar. टाइटल Title. बार. याद रहेगी ये बात, टाइटल Bar. दिख रहा है आपको? ये जो QB64 लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है? टाइटल बार. ओके, Yes, sir. उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए, फाइल, जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए गए, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? मेन्यू बार में. किसमें आते हैं बच्चों? Menu bar में. ये आते हैं Menu bar. मेन्यू बार में आते हैं. किसमें आते हैं? Menu bar. आई समझ में? समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके अलावा ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये पूरी स्क्रीन जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं, Yes, sir. Programming window. इस पूरी स्क्रीन को बोलते हैं जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं. Programming window. हाँ, उसको बोलते हैं, पूरी स्क्रीन को बोलते हैं, इस पूरी स्क्रीन को बोलते हैं, ब्लू वाली स्क्रीन को बोलते हैं प्रोग्रामिंग एरिया या प्रोग्रामिंग विंडो. प्रोग्रामिंग एरिया भी कहीं कहीं प्रोग्रामिंग एरिया बोल देते, कहीं प्रोग्रामिंग विंडो बोल देते, बस बात एक ही है, प्रोग्रामिंग. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. और लास्ट क्या है? ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? प्रोग्रामिंग Status विंडो, स्टेटस. window. ये क्या है? स्टेटस विंडो. इसको सर स्टेटस बार भी कहेंगे ना? हाँ, स्टेटस बार नहीं कह सकते उसको, स्टेटस बार भी कह सकते हो, ऐसा इश्यू नहीं है. पर स्टेटस बार ना कहकर इसको स्टेटस विंडो कहो. क्या बोलो? स्टेटस विंडो. ओके, Window. ये इज कॉल्ड स्टेटस विंडो, जहाँ पे स्टेटस देखते रहते हैं. ओके, स्टेटस Window. गॉट इट? इतना समझ Yes, में sir. आया? Yes, टाइटल sir. Yes, बार sir. है, ये मेन्यू बार है, ये प्रोग्राम एरिया जहाँ कोडिंग करते हो, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या गलती हुई क्या नहीं हुई है. ठीक है, समझ में आई? नहीं समझ में आई Yes, बात? sir. आ गई Yes, sir. sir. तो बेसिकली बात अगर करें हम लोग, इसमें जो सबसे दो इम्पोर्टेंट बात है वो है, दो बात पहले हम समझ लेते हैं. प्रोग्रामिंग विंडो क्या होती है, स्टेटस विंडो क्या होती है. ठीक है, प्रोग्रामिंग विंडो क्या होती है मेरे भाई बच्चों, माय स्टूडेंट? व्हाट इज प्रोग्रामिंग विंडो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस थिंग. द फर्स्ट थिंग इज प्रोग्रामिंग विंडो या प्रोग्रामिंग एरिया, कुछ भी बोल दो उसको, प्रोग्रामिंग विंडो भी बोल सकते हैं हम लोग. बुक में प्रोग्रामिंग विंडो लिखा हुआ है. कहीं कहीं इसको प्रोग्रामिंग एरिया भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग एरिया भी बोल देते हैं. ठीक है, ये क्या है?
It is used to write code. Okay, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं. It is used to write code. Okay. It have two scrolls. Horizontal scroll and vertical. Scroll. Got it? Got it or not? जी सर. Yes, sir. Yes, sir, got it. Okay. Now Yes, sir. the next is status window. Sir, I have a question. हाँ, please ask. सर हम लोग जानते हैं सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग के लिए एक ऐप बना हुआ है, तो सर उसको App, कैसे बनाया जाता होगा? एप्लीकेशन बहुत सारी चीजें बनाती है. वेबसाइट, जितने भी आप कंप्यूटर पे चीजें देखिए सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बने हुए हैं. आगे बताइए. नो सर, ये जो IDE बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती होंगी? उसके लिए भी प्रोग्रामिंग की जाती है. उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग की जाती है. ओके सर, वो थैंक यू. बेसिकली आईडी इसलिए बनाई है ताकि आप इजीली प्रोग्राम कर पाए. आई बात समझ में? समझ में आई नहीं समझ में? इसमें सारे Yes. कंपाइलर्स भी जुड़े हुए हैं. सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती है. आपको अलग अलग जाना नहीं पड़ता, अलग से प्रोग्राम रन नहीं कराना पड़ता. आप इजीली आईडीई की हेल्प से 1 मिनट में प्रोग्राम रन करा लेते हैं. आपको सोचना नहीं पड़ता. आप जैसे रन दबाते हैं प्रोग्राम रन हो जाता है आपका, है ना? जो एरर्स आती है वो Yes, सामने sir. दिख जाती हैं. ओके, इसलिए आईडी बनाई जाती है. और Yes, उसको sir. डेफिनेटली प्रोग्रामिंग से ही बनाया जाता है. ठीक है, वो आपका हिस्सा नहीं है. ओके ठीक है, आप अभी आप लोग क्या बिगिनर्स हैं, प्रोग्रामिंग में क्या बिगिनर्स हैं. तो अभी आपको बेसिक चीजें समझनी. क्या समझनी है? बेसिक बातें समझनी है. डोंट ओके, बहुत तेजी से मत बढ़िए, बेसिक बातें समझिए. ठीक है बच्चों, अभी आप लोग प्रोग्रामिंग के लिए रिलेटिवली न्यू हैं. स्टेटस विंडो क्या होता है? इट शोज द स्टेटस ऑफ द कंपाइलेशन स्टेज. यानी जब कंपाइल होता है प्रोग्राम, उस स्टेज में आपका स्टेटस बताता है कि प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ, क्या इश्यूज आए. ओके, यानी इट विल टेल द ऑल द एरर्स. इट विल टेल all and errors. Got it? Got it? Yes, चलिए मैं sir. आपको दिखाता हूँ कैसे. देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम छोटा सा करके दिखाता हूँ. ठीक है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी. सपोज मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे. ओके, स्क्रीन दिख रही ब्लू वाली? तो मैं छोटा सा कोड लिखता हूँ एक. Yes, sir. हेलो, मैं प्रिंट कराता हूँ. प्रिंट हेलो. फ्रेंड्स, गॉट इट? मैंने देखिए प्रोग्राम लिखा हुआ है. जैसे मैंने इसको किया, मैंने यहाँ से ये कॉमा हटा दिया सपोज. ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ और लिखा. हाउ आर यू. देखिए जैसे मैंने इसको लिखा, देखिए प्रोग्राम में एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, और नीचे देखिए इसके स्टेटस बार में, स्टेटस में कुछ दिखा रहा है आपको. स्टेटस में दिखा रहा है एक्सपेक्टेड ऑपरेशन इन इक्वेशन ऑन लाइन नंबर 1. देखिए लाइन नंबर 1 जो है उसमें हमारी एरर दिखा रहा है. राइट, ये स्टेटस बार का काम होता है. वो हमको बताता है किस लाइन में कौन सी एरर आ रही है. तो देखिए ये जो एरर आ रही है इसको डिबग करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ आते हैं, स्पेस हाउ आर यू. गॉट इट? जैसे मैंने इसको देखिए ओके किया, जैसे मैंने इसको ठीक किया, ये देखिए ओके आ गया. ओके आ गया. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं ये स्टेटस बार करता है. एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया जिससे आपको पता है कि स्टेटस बार में
चीजें कैसे देखी जाती है ना। और ये जो एरिया ब्लू कलर का जहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग एरिया, ठीक है। ओके सर। हो गया? यस सर। चलिए, इसके अलावा एक चीज याद रखिए कि जैसे मुझे प्रोग्राम रन चेक करना है, रन कराना, ओके, तो सबसे पहली बात होती है कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है F5 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F5। F5 एक की होती है, अपने आप देखिए क्रिएटिंग एन exe फाइल बनाता है और हमारा प्रोग्राम जो होता है रन होता है। क्या होता है? रन होता है। देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है, ये exe फाइल बना रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा। और देखिए जैसे मेरी प्रोग्राम रन हुआ, ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया, जो आपको शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखिए ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा, राइट। दिस इज द आउटपुट। क्या एक आउटपुट है। ये कैसे है? जब मैंने F5 दबाया IDE में, मैंने प्रोग्राम लिख करके रन पे जाकर के F5 दबाया, वैसे ही मेरे रन पे जाकर के मैंने रन क्लिक किया। इसके अलावा मैंने F5 दबाया, दोनों तरीके से प्रोग्राम रन हो सकता है, ठीक है। आई बताऊं मैं, आउटपुट दिख रहा है आपको बच्चों? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा। ओके, मम्मी, ओ मम्मी, नाउ अब बात करते हैं प्रोग्राम रन कैसे करते हैं। प्रोग्राम रन करने के दो तरीके मैंने बताए अभी आपको, जैसे देयर आर टू वेज। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलिए ठीक है। डांट गला, हम तो तुम्हारे गाँव प्रस्ताव न लिखा, हम दस्तखत करा नहीं, वो देव का हड़का नहीं सकती तो बल्कि हवा खराब। लेकिन भाई हॉटस्पॉट ऑन कर लिया। पंडितों बुद्धि बहुत अजीब हाथ भैया, जो तुमका मानिक कर दिया ठीक वहाँ पंडित बुद्धि लगाई गए। हाँ, तब तो काम भले हो न तुमको। वो समझ में बाबू रहा भाव वह पंडित रहा। पहला है प्रेस जो F5। डायरेक्ट क्या करें? F5 दबाएं जो हॉटस्पॉट ऑन टू रन द कोड। पढ़ाई करते करते सो गई। के बुध प्रस्ताव हो फोन ऐसे खुला रखा है। म्यूट योरसेल्फ आई सेड। स्टूडेंट्स म्यूट एवरीवन। आप कौन? मेरे First one is to press F5 to run the code. The other one is in menu bar. Sorry, in menu. Go to run, and the program will be run. Okay. In menu bar, go to the run option. Yeah, in menu bar. Go to run option. हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, दो तरीके से प्रोग्राम सेव हो सकते, रन हो सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम सेव करने का तरीका। सेव करने का तरीका प्रोग्राम वही है जो आपको जैसे सारी चीजें सेव होती है इसमें। वेट फॉर अ सेकेंड।
फाइल पे जाइए। दिख रहा है स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन दिख रही है बच्चों आप लोगों को? नो नो सर। सर। एक सेकंड वेट करिए। प्रोग्राम सेव करने का तरीका वही है, सबसे पहले मेन्यू बार के अंदर फाइल पर जाइए। फाइल फाइल। में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। ओके, तो सबसे वही बात, Save सेव as। एज पे जाइए। देखिए आपको लोकेशन दिख रही है, फाइल नेम ये देखिए, पाथ आपको दिख रहा है सी के अंदर, यूजर के अंदर, आसूस के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर QB64 नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। वहां पे देखिए, वहां पे फाइल का नाम रख देते हैं, मैं आपका नाम देता हूँ, सपोज मैं किसी बच्चे के नाम से मैं फाइल सेव कर देता हूँ। मैं सपोज सेव कर देता हूँ रौनक के नाम से। थैंक यू सर। ठीक है, पाथ देख लीजिए इसका, RAUNAK रौनक है ना, ये रौनक .bas। आपको पता है कि डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .bas। जो एक्सटेंशन होता है QBasic प्रोग्राम का वो होता है .bas, और जो उसका पाथ है देखिए C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, आसूस के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर QB64 नाम का एक फोल्डर बना हुआ है जिसपे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए मैं ओके करता हूँ। अब देखिए पाथ को देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर दी है। देखिए सबसे पहले मैं गया डाउनलोड्स, सबसे पहले मैं जाता हूँ C ड्राइव, इसके बाद जाते हैं यूजर्स, इसके अंदर बाद जाते हैं, सब दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? यस सर, सब दिख रहा है। आसूस, यस सर। इसके बाद देखिए कहीं लिखा होगा QB64 के डाउनलोड्स, डाउनलोड के बाद देखिए क्या लिखा होगा सर QB64। ऊपर ही था QB64। Yes, sir. वो लिखा हुआ है QB64 के अंदर। देखिए मैंने रौनक.bas नाम की फाइल सेव हो गई। गॉट इट? देखिए देखिए आप लोगों को, यस सर। देखिए यस सर। इस तरीके से प्रोग्राम जो होते हैं सेव होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम सेव होते हैं। इसका ओके सर। एक्सटेंशन जो है टाइप .bas, यानी कि ये QBasic की एक फाइल है। समझ में आई बात यस बच्चों? सर। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, समझ में इसका पाथ क्या दिया गया है। ओके, चलिए ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये पाथ है, अभी तो फिर डी ड्राइव है, सपोज हम लोग उसका चाहे तो पाथ चेंज कर सकते हैं। जैसे सोर्स के अंदर आ गई है ये, है ना, तो मतलब हम लोग अपने हिसाब से पाथ चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी पाथ नहीं चेंज करता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यही रखता हूँ। ठीक है, चलिए यस सर। ठीक है। चलो, समझ में आई बच्चों यहाँ तक बात? हाउ टू यस सर, एकदम। सेव द फाइल। चलिए, अब इसके बाद थैंक यू करते हैं सर। ओपन अ फाइल। किसी फाइल को ओपन करना, चलिए मैं आपको फाइल ओपन करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं फाइल ओपन। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन बंद कर देता हूँ, या मैं कोई फाइल आपको खोल के दिखाता हूँ। मैं फाइल पे जाता हूँ, ओपन पे जाता हूँ। किस पे जाता हूँ? ओपन पे। फाइल ओपन करने के लिए मेन्यू बार के अंदर ओपन ऑप्शन पे जाते हैं, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए मेरे पास फिलहाल अभी एक ही फाइल पड़ी है, रौनक वाली। मैं इसी फाइल को ओपन कर देता हूँ। देखिए ये फाइल आ गई, ये फाइल ओपन हो गई। अगर हम लोग 2-3 फाइलें और बना ले तो हम कोई भी फाइल चेक खोल सकते हैं। ठीक है, करना क्या होगा, मुझे फाइल पे जाना होगा, फाइल पे जाने के बाद ओपन पे जाना होगा। ओपन में जाने के बाद जो मेरे पास जितनी भी फाइल्स होंगी, ये लेफ्ट साइड में आपको सारी फाइल्स दिख जाएंगी। जैसे अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, रौनक.bas, तो वही वाली फाइल खुल गई। समझ में आई बात बच्चों? सर खुली नहीं है फाइल। ये तो फाइल ऑलरेडी खुली हुई है ना। हम चलिए मैं लोग आपको को फिर से नहीं। समझाता हूँ, रुकिए एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड रुकिए। सर इसको यहीं इसी से ओपन नहीं कर सकते हैं? यहाँ देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए एकदम ब्लैंक स्क्रीन है, दिख रही है आपको? यस यहाँ पे सर। मुझे अपनी वही रौनक.bs वाली फाइल खोलनी है। यहाँ पे कुछ लिख रहा है, आपको कोई फाइल दिख रही है? आपको नहीं दिख रही ना, नो सर। अनटाइटल्ड दिख रही है एकदम। देखिए यहाँ पे आइए, फाइल पे आइए, ओपन पे आइए, रौनक.bs पे आइए, खुल गया। ठीक है, गॉट इट? ओके सर। खुल गई नहीं मतलब खुल सर गई? फाइल आपकी कंप्यूटर पीसी डाउनलोड पे सेव होगा, लेकिन आप खोल सकते हैं QB64 पे। हाँ ठीक है, समझ आई बात? यस ओके, सर। चलिए मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइल रन करना भी मैंने सिखा दिया आपको। ठीक है, कल जो है इस चैप्टर के सारे वाइंड अप करके, इसकी जो मेन चीजें मैं बता करके सारे ऐसे एक्सरसाइज में कल आपको दे दूंगा। ओके,
तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए, कोई डाउट हो पूछिए मुझसे, ठीक है? मैं कल प्रोग्राम भी दे दूंगा, कल आपको उसका सारा वर्क दे दूंगा, ठीक है? Okay, sir. ओके सर, वाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir.